Hello students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you're continuously revising your previous chapters. So students, in this particular chapter, we will discuss various types of instruments that are available with the firm to arrange the funds. We have discussed the funds into debt and equity. Now, what are the various sources and what are the various documents through which we can arrange the funds or the business firm can arrange the funds so that they can keep on their production process, carry forward their production activities very well. So, let's start with this chapter. Okay. So, the firm requires the capital for basically two purposes, that is for the fixed duration and for the working capital. Fixed capital are those capitals which are arranged for the long duration, that is the investment period is beyond the period of 5 years. If we talk about the working capital are those capitals which are arranged for meeting out day-to-day activities. For example, salaries of the workers, payment for the raw materials, these are the requirement of the firm on the daily basis, and for this the working capital is need to be arranged. So, if we talk about the need of the capital, the finance can be of working capital requirement such as payment of the raw material as we have discussed, payment of the salaries and for the payment of the employees. That means जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कैपिटल के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, फॉर दैट वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल, these capitals are those capitals which one invested in the firm remains in the firm for the long duration. For example, if I want to make an expenditure for purchase of the machinery, I want to purchase any building, or I want to expand it for the production capacity, that means I want to increase my production capacity by purchasing new machineries, then I require the fixed capital for my business organization. So, if we talk about various sources, there are various sources which are available for the firm to arrange the capital. The first one we have already discussed, that is equity shares. For that, company issues an IPO, that is initial public offer. It is the first time when the company issues the shares. देखिए क्या होता है, जब हम हमारे स्कूल्स में एडमिशन्स लेने आते हैं तो आपको एक प्रोस्पेक्टस ऑफर किया जाता है स्कूल की तरफ से. उसमें क्या लिखा रहता है, स्कूल की जो अब तक की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्कूल ने अभी तक अपनी लाइफ साइकिल में किया है, जो गेन किया है स्कूल ने, जो अचीवमेंट्स स्कूल ने लिए हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा रहता है. सिमिलरली कंपनीज भी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं. उन प्रोस्पेक्टस में कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहती है. कंपनी का लास्ट प्रॉफिट्स क्या थे, कंपनी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया है और क्या क्या कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ उसके अंदर लिखी रहती है. When an investor comes to the company for the purpose of the investment, he reads that prospectus, he get know about the company, उसको कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है और उसको लगता है कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर दिया जाता है. उस एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिल कर क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं या इक्विटी शेयर्स परचेज कर सकते हैं. आपने जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर कंपनी के पास डिपॉजिट किया, कंपनी क्या करती है, जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और आप क्या बन जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट. सो दीज आर दी बेसिक मैकेनिज्म. नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स फॉर प्रोवाइडिंग द फंड्स. अब देखिए होता क्या है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो दो तरीके से चीज़ें होती है. एक तो जो हम जैसे लोग होते हैं, हाउस होल्ड्स, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. दूसरी तरफ आती हैं इंडस्ट्रीज, जो फाइनेंस को यूज़ कर इन्वेस्ट करती हैं, राइट. तो जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें उसके अगेंस्ट में रिटर्न मिलेगा. बिजनेस एंटिटी जब उस फंड को यूज़ करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उससे क्या करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे. तो दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया. हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड्स हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करवाए, उसके अगेंस्ट में तो हमको क्या मिल गया, रिटर्न मिल गया. और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फंड्स किसको दिए, कंपनीज को दिए, कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट मिल गया. तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
Basically, the rate of return offered to the household would be higher. That means higher from the bank rate. जो रिटर्न हमें बैंक प्रोवाइड कर रही थी, देखिए जो फंड्स हमारे पास एक्सेस रखा हुआ है, जो फंड्स हमारा काम नहीं आ रहा, हम उसे क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब अगर हमारा फंड्स बैंक में रखा हुआ है तो बैंक हमें क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट या फिर रिटर्न प्रोवाइड करती है, जिसकी बेसिक परसेंटेज रेट होती है 3.5%। ये रेट है जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है हमारी सेविंग्स पे। अगर हम बैंक में सेव नहीं कर कर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट इससे ज़्यादा रिटर्न तो हमें मिलना चाहिए। तो कंपनीज क्या करती है, बेसिक जो बैंक रेट्स होती हैं उससे ज़्यादा रेट्स आपको ऑफर करती है। सेकेंड, scarce resources are allocated to those firms which have highest productivity for the economy. That means वो funds किसको दे दिए जाते हैं, वो funds दे दिए जाते हैं उन इंडस्ट्रीज को, उन कंपनीज को जो आपके फंड्स को यूटिलाइज करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैकेनिज्म क्या हुआ, फंड्स आपने दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने वो फंड्स किसको दे दिया, कंपनीज को, कंपनी ने इन्वेस्ट किया और वहाँ से क्या जनरेट किया, रेवेन्यू जनरेट किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना कुछ कमीशन रखा और बाकी का अमाउंट आपको ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों के पर्पस सॉल्व हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पर्पस था कमीशन अर्न करने का वो भी फुलफिल हो गया, और साथ में जो कंपनीज का मोटिव था क्या चीज, रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करने का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। राइट, ओके, दिस इज द मैकेनिज्म थ्रू विच इन्वेस्टमेंट इज डन। देखिए जो हाउस होल्ड है वो लोग क्या करेंगे, वो अपने फंड्स को बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिपॉजिट कर देंगे। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, बिजनेस फर्म्स को वो फंड को एलोकेट कर देंगे। ये बिजनेस फर्म्स क्या करेंगी, इनके बिहाफ पे जो फंड्स इनको मिले उनका क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। वहां से जो रिटर्न निकल कर आएगा, जो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया, वो रिटर्न किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या बैंक्स को। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स क्या कर देंगे, जो ये फंड्स है किसको ट्रांसफर कर देंगे, ये कर देंगे हाउस होल्ड्स को जिन्होंने इनिशियली फंड्स लगाए थे। राइट, नेक्स्ट सी वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड सेवर्स, हम जैसे लोग जो अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसको सेव कर देते हैं किसी भी बैंक्स में जाकर। ठीक है, आप जब भी कोई भी कहीं से इनकम जनरेट करते हैं तो उसका कुछ पार्ट तो हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में लगा देते हैं। कुछ जो फंड्स हमने अपने फ्यूचर के लिए बचाया होता है उसको क्या किया जाता है, उसको बैंक्स में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये जो फंड था इस सेवर ने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक्स में। बैंक ने क्या किया, उस फंड्स को किसको डिपॉजिट कर दिया, बिजनेस फर्म्स को। दैट मीन्स इन्होंने क्या लिया, बिजनेस फर्म ने बैंक से ले लिया लोन, हमने क्या किया, हमने यहां से अपने अमाउंट को कर दिया डिपॉजिट। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, ये जो बिजनेस फर्म है ये किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में क्या कर देंगी, इन्वेस्ट कर देंगे हमारे फंड्स को, जहां पे इनको लगता है कि हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न जो ये जनरेट होगा यहाँ से वो वापस से कहाँ चला जाएगा, बिजनेस फर्म्स के पास। और बिजनेस फर्म्स जितना भी लोन इन्होंने लिया था वो वापस से अमाउंट किसको ट्रांसफर कर देंगे, कमर्शियल बैंक्स को। और कमर्शियल बैंक्स क्या कर देंगे, उसी अमाउंट को हाउस होल्ड को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न ट्रांसफर कर देंगे। राइट, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। द फर्स्ट थिंग इज mobilizing of the savings and channelizing them to the most productive uses। देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, जो लोग अपना फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों को फंड्स की जरूरत है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो सेविंग्स मेरे लिए कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं आ रही थी, जो सेविंग्स मेरी एज इट इज रखी हुई थी जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा था, मैंने उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। किसकी हेल्प से किया, कमर्शियल बैंक की हेल्प से किया, और उससे मैंने क्या जनरेट कर लिया, रेवेन्यू जनरेट कर लिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, It gives the savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus funds into the most productive use। That means ऐसा funds जो मेरे को आज यूटिलाइज नहीं हो रहा था, जिस फंड्स को मैं आज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, वो फंड्स का क्या किया, मैंने उस फंड से अपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर ली।
नेक्स्ट थिंग इज फैसिलिटेटिंग ऑफ द प्राइस डिस्कवरी। क्या होता है, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई से, राइट। गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, डेफिनेटली उसकी प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जनरली होता क्या है, यहाँ पे भी सेम ही मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई का। ओके, जैसे जैसे मेरी भी किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी इंक्रीज होती जाएगी प्राइस। और अगर इसका इन्वर्स, अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें कि भाई मेरे पास सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। उस सिचुएशन में प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है, जब प्राइस डिस्कवरी की बात की जाती है तो प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, डिमांड और सप्लाई से, राइट। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। जनरली क्या होता है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात की जाए, ओके, अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात की जाए तो क्या होता है, इजीली सेल एंड परचेज की जा सकती है कमोडिटी की, क्योंकि मेरे पास बायर्स भी अवेलेबल हैं और मेरे पास सेलर्स भी अवेलेबल हैं। मेरे को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी भी अपनी कमोडिटी को सेल करना चाहता हूं तो उस सिचुएशन में उसको इजीली सेल किया जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या है, दोनों ही लोग अवेलेबल होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स। ऐसे लोग जो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहते हैं वो लोग भी अवेलेबल हैं, और ऐसे लोग जो सिक्योरिटी को परचेज करना चाहते हैं वो लोग भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है मेरे लिए कोई भी गुड्स को सेल और परचेज करना। नेक्स्ट थिंग, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास दोनों बायर और सेलर अवेलेबल हैं तो मेरे को कोई नए लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई एडवर्टीजमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास ऐसा बंदा अवेलेबल है जिसको मैं सिक्योरिटी सेल कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट मेरे को प्रिपेयर करना है और उसके बेसिस पे मैं इजीली अपनी जो सिक्योरिटीज़ है उनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, Financial markets provide valuable information about the securities being traded in the market. जनरली क्या होता है, जो सिक्योरिटीज हैं जिसके लिए हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास ऑलरेडी है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी लॉस अर्न कर रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल होगी तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा उसको परचेज या सेल करना। अगर मेरी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में तो इजीली मेरी सिक्योरिटीज सेल हो जाएंगी, राइट। तो इसी पर्पस से क्या होता है कि मेरे लिए इजी हो जाता है मेरे शेयर्स को सेल करना, राइट। नेक्स्ट if we talk about first we will discuss about the types of the market. We can classify the market into two types, that is money market and the capital market. If we talk about the money market is generally for the short duration. Okay, money market is generally for the short duration. That means the duration for this market is up to the period of 1 year. But if we talk about the capital market, it generally deals for the two types or the two scenarios, that is for the medium term and for the long term. That means the duration for this type of market is beyond the period of 5 years. That means यहाँ तक तो हम उन्हीं सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे जिनकी ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का होता है। जैसे हमने बात करी थी कमर्शियल पेपर्स, ये वेरी करते हैं 90 डेज टू 364 डेज। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, जिनका हमने इन्वेस्टमेंट एक बार कंपनी में कर दिया तो इनका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। कैपिटल मार्केट को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिक्योरिटीज इनिशियली फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी इज इशूइंग द इक्विटी शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी मार्केट। ये एक ऐसी सिक्योरिटीज है जिनकी ट्रेडिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम ये सिक्योरिटी रजिस्टर हो रही है, तो ये किस में आ जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में। Once the securities is issued in the market, it is automatically converted into secondary market. क्या होता है, एक बार मार्केट में चीज आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी सेल एंड परचेज स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हो जाती है, तो वो चीज किसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, सेकेंडरी मार्केट। इट इज वेरी सिमिलर टू योर ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट। जब हम कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में से परचेज करते हैं तो उसको हमें किससे परचेज करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर से। लेकिन जब हम कोई भी गुड्स बाय करते हैं OLX
या फिर ऐसे कोई साइट से जब हम सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरर से परचेज ना कर कर उसको हम किसी भी ऐसे पर्सन से परचेज करते हैं जिसने उसको ऑलरेडी परचेज किया था, राइट। अब देखिए प्राइमरी मार्केट की बात की जाए तो सिमिलरली इनका दो सिनेरियो होते हैं, फर्स्ट इज डेब्ट एंड सेकंड इज इक्विटी। डेब्ट इज द बोरोड फंड एंड द इक्विटी इज ओन फंड्स, दैट इज ओनर्स फंड। जो पैसा हमने खुद से लगाया उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, इक्विटी में, और जो पैसा हमने बोरो किया है, जो हमने दूसरों से लिया है पैसा अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो किस में कैटेगराइज होगा, डेब्ट कैपिटल में। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मनी मार्केट. As we have seen, the money market is for the short duration, that is the tenure of this market. First we will talk about it is for the short term and the tenure for this is 1 year. Means यहाँ पे उन्हीं सिक्योरिटीज की बात की जाएगी जिनका टेन्योर कितना होगा, अप टू द पीरियड ऑफ 1 year. That means जब हमने बात करी थी करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, वो सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होंगी. यहाँ पे वो सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लिक्विड का मतलब, लिक्विड मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मनी मार्केट जनरली आपकी शॉर्ट फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है और इसका ड्यूरेशन इसलिए क्या रखा गया है, इसका ड्यूरेशन हमने अप टू द पीरियड ऑफ 1 year रखा है, राइट. नेक्स्ट, देयर आर वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. अगर हम इनके इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो कि भाई हमने ये चीज़ तो पढ़ी कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल होगा 1 year के लिए, लेकिन क्या वो फंड्स ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे क्या, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे क्या, कोई प्रोसीजर नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा. देखिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इशू किए जाते हैं इन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए. फर्स्ट हम बात करते हैं हमारा ट्रेजरी बिल्स. देखिए ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये जनरली कौन इशू करता है, ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. किसके बिहाफ पे इशू किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, राइट. तो क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है तो ये ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाएंगे. अब डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करती. दे हैव ऑथराइज्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग सच डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर बिहाफ. तो जनरली क्या होगा, they are also known as zero coupon bonds issued by the Reserve Bank of India on behalf of the central government. Why it is known as zero coupon bonds? देखिए ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है. ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इनकी फेस वैल्यू से कम प्राइस पे इशू किए जाते हैं, राइट. कैसे, देखिए क्या होगा अगर मैं बात करूं जीरो कूपन बॉन्ड्स की. देखिए इन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, पहली चीज तो हमने पढ़ा ये आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल इन जो डॉक्यूमेंट्स है, इन ट्रेजरी बिल्स की जो फेस वैल्यू है वो है ₹1 लाख. तो आरबीआई क्या करेगा, इनको आपको इशू कर देगा 94,000 रुपीज. ओके, क्या किया, इसको इशू कर दिया 94,000 रुपीज में. अब क्या होगा, इनकी जो मैच्योरिटी होगी, इनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 years. या फिर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो 5 years हम इसको ना लेकर इसको हम कितना ले लेंगे, हम इनको ले लेंगे 1 year. फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया वो किया 1 year. अब क्या होगा, जैसे ही ये 1 year कंप्लीट होगा क्या होगा, आपको पेमेंट का टाइम आएगा और आपको पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा 1 लाख रुपीस. इसका मतलब हमने क्या समझा कि भाई ये जब डॉक्यूमेंट इशू किए गए तब तो हमें कितने में मिल गए, 94,000 में, लेकिन जब इनका फाइनल मैच्योरिटी पे पेमेंट किया गया तो कितना किया गया, पूरा 1 लाख. इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया, कितने का आया, 6,000 रुपीज़ का. ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, इंटरेस्ट. तो इन डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली इंटरेस्ट पे ना कर कर जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे कर दिया जाता है, राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग इज, देखिए बेटा नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये हमेशा लॉट में चलते हैं और इनका जो अमाउंट होता है वो 25,000 के मल्टीपल में इशू किया जाता है. दैट मीन्स अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 25,000 रुपीज़ का. कई बार इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स और 1 word आंसर्स, राइट. तो हमेशा जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो 25,000 के मल्टीपल्स में चलते हैं.
नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज कमर्शियल पेपर्स। देखिए कमर्शियल पेपर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। जब हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है और बैंक्स हमें फंड्स प्रोवाइड नहीं करते, इन दैट केस वी विल इशू द कमर्शियल पेपर्स। बेसिकली ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं। दैट मीन्स इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में कोई भी एसेट्स मॉर्गेज पे नहीं रखी जाती। ये बेसिकली शॉर्ट नीड्स को फुलफिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर इनकी बात की जाए कमर्शियल पेपर्स की, तो ये जनरली ट्रांसफरेबल होते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद द फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। देखिए क्या है इसका मतलब, दैट इज इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड ही रहेंगे। जिस भी पर्सन को ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उन्हीं को क्या हो जाएगा, उन्हीं की ओनरशिप आ जाएगी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक से लोन लिया, कमर्शियल पेपर इशू किया, अगर मैं लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा तो मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी को सेल कर दूंगा। अब बैंक की लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई, उस पर्सन के ऊपर जिसके पास वो कमर्शियल पेपर है। इसका मतलब जैसे ही वो कमर्शियल पेपर ट्रांसफर किया उसको पे करने की लायबिलिटी भी क्या हो गई, उस पर्सन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, राइट। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल मनी। ओके, देखिए कॉल मनी की अगर बात की जाए, हमने एक चीज पढ़ी है हमारे क्लासेस में कि भैया कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है कि जब बैंक हमसे डिपॉजिट्स लेती है या हमारे पास कभी भी कोई भी फंड्स हम बैंक के पास जमा कराते हैं तो बैंक उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करेगी, फर्स्ट इज 20% एंड सेकेंड इज 80%। ये 80% तो क्या करती है, बैंक हमेशा इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इन्वेस्ट कैसे करेगी, आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी। लेकिन ये जो 20% है इसका क्या होता है, ये 20% एज पर दी RBI गाइडलाइंस आपको हमेशा अपने पास रखने पड़ते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये एक ऐसा अमाउंट है जो हमेशा आपके पास रिजर्व रखा रहेगा, आप इस फंड को यूज नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बैंक ने 20% अपने पास रिजर्व रखा, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस CRR को बढ़ाकर 30% कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये रेशियो चेंज हो गया। अब 30% आपको अपने पास रखना पड़ेगा और 70% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब क्या करेगी, जो बैंक है जिसका कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा, वो किसी दूसरी बैंक से, दैट इज बैंक नंबर 2 से क्या कर लेगी, बोरो कर लेगी, राइट। इसका मतलब क्या होगा, फंड्स एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करती है अपने कैश रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, वो क्या होती है हमारे लिए, कॉल मनी। देखिए कॉल मनी की अगर बात की जाए, कॉल मनी is a short-term finance repayable on demand with the maturity period of 1 day to 15 days used by the interbank transactions। Means इन डॉक्यूमेंट्स की जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो कहाँ से वेरी कर सकती है, 1 day to 15 days। और जनरली एक बैंक दूसरी बैंक के कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए ये कॉल मनी का बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो बियरर फॉर्म पे काम करता है। दैट मीन्स जिस भी पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसी पर्सन के पास क्या रहेगी, इसकी ओनरशिप। दैट मीन्स हमने क्या किया, कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट इशू कर दिया। जैसे हमारे पास चेक्स होते हैं, ठीक है, जो चेक्स हमारे सिर्फ नाम लिखकर दे दिए जाते हैं, जो भी पर्सन उन चेक्स को डिपॉजिट करता है उसी को क्या मिल जाता है, बैंक से अमाउंट मिल जाता है। सेम प्रोसेस है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का। ये भी जनरली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बियरर बेसिस पे काम करते हैं। जिस पर्सन के पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हीं को क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया, उसके अगेंस्ट में मैंने बिल इशू कर दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, जिस भी पर्सन के पास ये बिल होगा उसी को पेमेंट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस भी पर्सन को बिल इशू किया गया था उससे बिल गुम जाता है और किसी थर्ड पर्सन को मिल जाता है। अगर वो थर्ड पर्सन बिल लेकर मेरे पास आएगा तो मैं पेमेंट किसको करूंगा, उसी पर्सन को करूंगा जिसके पास वो बिल होगा, राइट, या फिर जिसके पास वो कमर्शियल पेपर होगा।
नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कमर्शियल बिल। ये क्या होता है? A commercial bills is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of the firms। देखिए क्या होता है, जनरली होता क्या है कि भाई जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो क्या होता है, बिल्स इशू कर दिए जाते हैं। ये जस्ट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया गया और जो भी वेंडर था उसको फंड्स की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और उस बिल्स को डिस्काउंट करा लेता है, ठीक है। इसका मतलब बैंक क्या करती है, कुछ कमीशन डिडक्ट करती है और वो कमीशन डिडक्ट करने के बाद बाकी का पेमेंट किसको कर देती है, उस वेंडर को दे देती है। तो कमर्शियल बिल्स जनरली करते क्या है, जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की उसको पूरा करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। जनरली when a trade bill is accepted by the commercial bank it is known as commercial bills। that means ऐसे bills जो banks accept कर लेती है, जो बैंक डिस्काउंट कर देती है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है commercial bills।